नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नाइला और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टूरिस्ट मैगजीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से रूबरू कराते हैं, टूरिज्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की भी सैर कराते हैं। सो यू वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टूरिस्ट मैगजीन। कश्मीर में बाहर का मौसम शुरू हुआ है और इसके साथ ही सयाहों ने वादी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। आजकल सयाह कश्मीर में जहां पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जाते हैं, तो वहीं श्रीनगर में निशात, शालीमार, चश्मे-शाही और ट्यूलिप गार्डन भी जाते हैं। आजकल ट्यूलिप गार्डन अपने पूरे जोबन पर है और इस वक्त टूरिस्ट मैगजीन की टीम भी ट्यूलिप गार्डन में मौजूद है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ट्यूलिप गार्डन के ये नज़ारे टेलीविजन सेट्स के जरिए आपके घरों तक पहुंचे। साल सर्दियों का मौसम खत्म होते ही कश्मीर में शगुफों का मौसम यानी मौसमी बहार शुरू होता है। इस मौसम में कश्मीर की बर्फानी हवाओं में खुशगवार तब्दीली होने के साथ साथ फूलों का मौसम भी शुरू होता है। जहां एक तरफ मेवा बागों में दरख्तों पर शगुफे फूट पड़ते हैं, वहीं कश्मीर के बागी गुले लाला यानी ट्यूलिप गार्डन में मुख्तलिफ रंगों के ट्यूलिप्स खिल उठते हैं। What's your name? Shilpa Keshwara. Where are you from? From Africa and the UK. Have you been here earlier? No, it's first time. How did you plan your visit to Kashmir? It was just a spare of the moment thing. We'd come to Delhi and we just thought, let's go and see Kashmir as well. And for how long have you been here? We arrived this morning, so this is just, we just dropped off at the boat hotels and just started with this. How's Kashmir? Oh, it's really nice. It's beautiful. Not so cold. I was a little bit worried it's going to be cold, but it's lovely. Lovely people, lovely weather. And what are your feelings on this year tulip garden? I think it's just amazing. All the different colours and the way they've maintained it, looked after it. It's really good. Have you ever been to Holland? Because Holland is also famous for tulip cultivation. No, I haven't. I've been to Sweden, not Holland, because that's quite well known for tulips as well. What attracted you more here in Kashmir? We've always talked about it, so it was just a chance that we could come. So we thought, why not? But I think we've only come for a short time. Maybe next time we'll come with the whole family. Sure. So yeah, it's good. It's lovely. I mean, the people are so nice. It's very quiet. Very friendly. This is just lovely. It's amazing to see this. ज़बरवंत पहाड़ी सिलसिले में मौजूद कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यूं तो ये बाग हर साल अप्रैल के पहले हफ्ते में लोगों के लिए खोल दिया जाता है, मगर इस साल यानी साल 2016 में विंटर के दौरान खिली धूप रहने की वजह से ट्यूलिप गार्डन 15 मार्च को ही आवाम के लिए खोल दिया गया और इस तरह कश्मीर में 2016 के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला मार्च से ही शुरू हुआ। What are your impressions about Tulip Garden? It's beautiful
I've never seen these colors of the flowers in anywhere in the world. It's really beautiful, and as they said, Kashmir is a swag. It is true, you know, it's amazing. This is our first day. I'm really impressed, and we even decided we should come with our family. Yeah, we're already missing our kids. Yeah. What kind of flowers do you like the most? Oh, my favorite flower is rose. But I mean, where we live, we don't have this sort of flowers. And I was just telling my wife, can we take some of these flowers that we have in our garden? Okay. Yeah. This time tourists seem to be very lucky because they got flowers and snow almost together. Up in the mountains there's snow, and down in the plain there's foliage and flowers. I mean, do you find this fascinating? Yeah, it is. I mean, as I said, amazing experience. Never seen like this, as flowers and snow, everything together. If when there is a snow and you see everything is dry, but here everything together, it is really impressing. Don't you think you should invite people to explore the beauty of this place, and you'll really remember this for your life? Yeah, it's true. You know, outside the world, people think Kashmir it's not safe, but when we came here, it's totally opposite. I think this place is very secure. People are very friendly. I will tell everyone they must come and visit this place. बागी गुले लाला यानी ट्यूलिप गार्डन कश्मीर की मशहूर झील डल लेक के किनारे पर वाक़ा है, जहां एक तरफ डल लेक के मचलते पानी और दूर दूर तक फैले पहाड़ी सिलसिले सयाहों को खूब लुभाते हैं, वहीं बागी गुले लाला की खूबसूरती सयाहों को खूब पसंद आती है। इस बाग में जिधर देखो सैयाह अपने कैमरों और मोबाइल फोन से सिर्फ फोटोग्राफी करते दिखाई देते हैं। दरअसल ट्यूलिप गार्डन की सुंदरता है ही इतनी पुरकशिश कि सैयाह इस बाग में अपनी मौजूदगी को तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं। अभी आप ट्यूलिप गार्डन में हैं, ट्यूलिप गार्डन आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे, और स्पेशली रेड्स कलर के जो ट्यूलिप्स हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे काफ़ी। ट्यूलिप्स पहले कभी देखे थे? नहीं, फर्स्ट टाइम यही देखे। और ट्यूलिप देखकर, इतनी वैरायटी में ट्यूलिप्स देखकर कैसा फील कर रहे हो? ग्रेट, एकदम अमेजिंग, ऑसम फीलिंग है। कश्मीर को आपने पहले फिल्मों में देखा होगा, क्योंकि वैसे, काफ़ी फिल्मों में कश्मीर को दिखाया गया है, वैसा ही कश्मीर देखने को मिला या उससे भी बढ़िया? नहीं, हकीकत में ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्या चीज़ ने आपको यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट किया? यहाँ का वेदर, क्लाइमेट ज़्यादा। बागी गुले लाला में मुख्तलिफ रंगों के ट्यूलिप्स लगे हैं। ये ट्यूलिप्स न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि इनका रंग हॉलैंड और इंग्लैंड में पाए जाने वाले ट्यूलिप्स के मुकाबले में काफी गहरा है। ये भी एक वजह है कि कश्मीर के ट्यूलिप्स रंगों के मुकाबले में दुनिया के बाकी तमाम ट्यूलिप्स को मात देते हैं। दूर दूर तक हद निगाह तक फैली ट्यूलिप्स की कतारें हर देखने वाली आंख को हैरत में डालते हैं। सच तो ये है कि इस बाग में खिले लाखों ट्यूलिप्स के पीछे फ्लोरिकल्चर महकमे की साल भर की मेहनत और देखरेख शामिल है। सर, इस साल ट्यूलिप्स के बल्ब कितनी तादाद में लगाए गए? देखिए, पूरे हमारे गार्डन में 10 लाख बल्ब हमने शो किए हैं, और उसमें से 4,20,000 जो बल्ब हैं वो अब की बार नए हमने इंपोर्ट किए हैं हॉलैंड से, और जो पुराने 6 लाख के करीब बल्ब से वो हमारे पुरानी स्टॉक में से हमने वापस रिप्लांट किए जी। और क्या ट्यूलिप गार्डन के एरिया में कुछ एक्सपेंशन हुआ है? देखिए, ट्यूलिप गार्डन जो पूरा गार्डन है 600 कनाल पे है। अभी हमने ट्यूलिप गार्डन को देखा तो 140 कनाल्स पे ही ले किया गया है। जो बाकी एरिया है या तो वो स्लोपी एरिया है या फिर ऐसे अनबिकमिंग एरिया है जो अभी बनाना है, और बना के उसको डिफरेंट फ्लावरिंग क्रॉप्स में ला सकते हैं। तो इसके बारे जो लैंडस्केपिंग प्लान है वो अंडर कंसिडरेशन है, और जो ही हमारा अप्रूव होता है गवर्नमेंट से ये प्लान पूरा, तो उसके बाद वो एक्सपैंड भी होगा।
कश्मीर का ये ट्यूलिप गार्डन अगरचे 5 हेक्टेयर पर फैला है, ताहम इस साल इसमें मजीद अराजी शामिल करके इसे और वुसअत दे दी गई है। ये बाग अगरचे सिर्फ ट्यूलिप्स के लिए ही वक्फ है, मगर इस बाग की खूबसूरती में मजीद इजाफा करने की गर्ज से फूलों की कुछ और वैरायटीज भी लगाई गई है। ट्यूलिप गार्डन में आके कैसा लग रहा है? मतलब हेवन ऑफ द अर्थ बोलते हैं ना, बिल्कुल वही फील हो रहा है यहाँ आकर। मतलब फ्लावर्स के कलर्स और जो ये पहाड़ है बर्फ के, मतलब जो बोला जाता है कि धरती पे कहीं स्वर्ग है, वो फीलिंग यहाँ आके बिल्कुल फुलफिल लग रही है। पहले कभी ट्यूलिप्स देखे थे? नहीं, ट्यूलिप फर्स्ट टाइम है। और ट्यूलिप में कौन सा कलर आपको ज्यादा पसंद आया? वैसे तो सब कलर्स अच्छे हैं, बट रेड जो अट्रैक्ट कर रहा है, रेड कलर्स, वो ऑसम है। आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? ऐसे मुझे सब पसंद है, बट यहाँ आके तो लग रहा है इसके पास शायद ट्यूलिप ही हो जाएगा। ये ऑसम है जी। जब आप वापस जाएंगे तो कश्मीर के बारे में अगर आपसे कुछ कहेगा, आपके फ्रेंड्स आपको पूछेंगे कश्मीर के बारे में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कि लोग इतना फॉरेन जाते हैं, इंडिया छोड़ के लोग फॉरेन जाते हैं, बट अगर जिसने इंडिया में कश्मीर नहीं घूमा है उसने आई थिंक कि कुछ भी नहीं घूमा है। तो सबसे पहले अगर इंडिया में कश्मीर घूमो, उसके बाद ही फॉरेन जाओ। अल्टीमेट है ये। ट्यूलिप दरअसल एक बहुत ही नाजुक फूल है और इसकी लाइफ भी 15-20 दिन से ज्यादा नहीं होती। यही वजह है कि बागी गुले लाला सिर्फ महीने भर के लिए ही अपने पूरे शबाब यानी फुल ब्लूम पर होता है। बागी गुले लाला में खिले ट्यूलिप्स पर बढ़ते दर्जे हरारत का बहुत असर रहता है। दरअसल इस फूल के लिए अर्ली स्प्रिंग का ठंडा मौसम भी मौजूद रहता है और ये फूल खिलता भी इसी मौसम में। ट्यूलिप गार्डन में आके कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है इधर का वातावरण, और इतना फ्लावर्स जो ट्रू कलर्स देखने को मिलता है इधर देखने को मिल रहा है हमें। ट्यूलिप्स पहले कभी देखे थे? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। कश्मीर ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। सो मैं जानना चाहूंगी एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में आके हाउ डू यू फील? It is very beautiful. As he said, the colors are beautiful. The weather is also very nice. So we have come here for the first time and we are enjoying. Have you ever seen tulips before? No, this is the first time we are visiting. Which color? Which is your favorite color? It's orange and the white. So I think this is my favorite color. And what kind of flower do you like the most? Everything as such. So all the flowers. What is your overall impression about Kashmir? It's a beautiful place. We always heard about Kashmir, so it's a must-visit place for all the tourists. So whoever is watching this, I would ask them to please visit Kashmir and not to miss tulips, of course. ट्यूलिप गार्डन में खिले मुख्तलिफ रंगों के ट्यूलिप्स सयाहों को हैरान कर देते हैं। यहाँ आकर सयाहों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो इतनी खूबसूरत लोकेशन पर पहाड़ी सिलसिले के दामन में इतना खूबसूरत बाग देख रहे हैं। सच तो ये है कि यहाँ आकर सयाह खुशी से फूले नहीं समाते। अभी आप ट्यूलिप गार्डन आई हुई हैं और इस वक्त ट्यूलिप गार्डन अपने पूरे जोबन पर है। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्यूलिप्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आने का आपका अनुभव कैसा रहा? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ट्यूलिप गार्डन एंड वी आर वेरी लकी कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला, क्योंकि ईयर में 1 टाइम ओपन होता है ना, राइट। तो दैट्स वी आर वेरी लकी कि हम यहाँ पे आए। राइट। ट्यूलिप्स पहले कभी देखे हैं? नो। और ट्यूलिप्स में आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स डू यू लाइक द मोस्ट? रेड, वाइट, येलो, ट्यूलिप एंड लिली। बहुत अच्छा लगा, जो कि हमेशा पिक्चर्स में देखा था वो आज सामने देख करके। और तो थोड़ा सा लगा कि अभी उतने ब्लॉसम नहीं किए हैं, अगर शायद अप्रैल तक आते तो और ब्लॉसम हुए दिखते ट्यूलिप्स, बट इतने रंगों में इतने ट्यूलिप्स देख करके सच में बहुत खुशी हो रही है।
और आई एम ऑलवेज कि मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम हियर कि मुझे देखना था कि किस तरह के होते हैं ट्यूलिप्स, डेली में देखने को कहीं नहीं मिलते। आप खुद को कितना नेचर के करीब पाते हैं? मैं बहुत करीब हूँ, मैं अपने घर में भी बहुत गार्डनिंग करती हूँ, बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ हिबिस्कस एंड रोज, आई हैव मेनी, बट ट्यूलिप जैसे फ्लावर को देखने के लिए इट वाज वर्थ इट कमिंग हियर। ट्यूलिप्स पहले कभी देखे थे? नहीं, पहले कभी नहीं देखे थे। और ट्यूलिप में आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर आई विल से रेड, व्हिच आई लाइक मोस्ट हियर। एंड व्हाट्स योर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस इन कश्मीर? अभी तो शुरू हुआ है ट्रिप, इट्स वेरी अर्ली टू से दैट कि कौन सा विच इज द मोस्ट मेमोरेबल, बट वी लाइक बीइंग इन शिकारा लास्ट इवनिंग एंड दिस इज आल्सो अ वंडरफुल मोमेंट watching all these tulips and all these things. और अगर आपसे कहा जाए कि कश्मीर को एक लाइन में एक्सप्लेन करें, what would you like to say? I like to say, I have heard this thing कि अगर जन्नत है तो यहाँ है, तो वो फील होता है यहाँ पर आकर के कि हाँ जन्नत है, and you feel like living. चारों तरफ वादियाँ, बीच में हरियाली, और it's wonderful. आता जाता नहीं। नाजरीन, टूरिस्ट के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। Here we take a short musical break, but don't go anywhere. We'll be right back. किस लिए तेरा रंग गोरी, हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। अच्छा? राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब, मेरा चल जो जरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया। कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली, ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली, तेरे घर वाले न कर दे इनकार। सब है तैयार, सब है तैयार, सुन ले फिर दिल की फरियाद, बस बाकी शादी के बाद। पिया देखो दिए जलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यूर वॉचिंग प्रोग्राम टूरिस्ट मैगजीन। नाज़रीन, आइए कुछ और टूरिस्ट से बात करते हैं और देखते हैं कश्मीर के बारे में इनका क्या कहना है। मैं हैदराबाद से हूँ। हम परसों का आया हुआ है यहाँ पर। हम यहाँ घूमे हैं, गुलमर्ग वगैरह भी गए कल जम्मू से हम लोग यहाँ वैष्णो देवी का दर्शन करके यहाँ पर आए हुए। जो हम लोग पहले यहाँ सुनते थे इसके बारे में, यहाँ आने के बाद कम्प्लीटली डिफरेंट है। जब हम बचपन पे सुनते थे ये भूलोक का स्वर्ग है, यहाँ आके वो साबित हुआ है ये सही भी स्वर्ग है। एंड रियली वी फेल्ट, एंड यहाँ का लोगों के बारे में भी सुनते थे, जो यहाँ का है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड मोरओवर हमको सबसे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर गंदगी नहीं है, हर आदमी जिम्मेदार है, अपना डस्टबिन में डस्ट फेंकता है, ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। एंड मौसम काफ़ी बहुत अच्छा लगा। एंड बर्फ़ को जो ज़िंदगी में देखने थे तो बर्फ़ वगैरह भी देखे हैं। एंड टुलिप गार्डन जो हॉलैंड के बाद जो हिंदुस्तान में है, ये भी फूल वगैरह देखने को हम लोगों को मौका मिला। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। एंड मोरओवर जो सुनते थे वो कम्प्लीटली नहीं है, डर के हम लोग आए थे, बट ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर डरने के लिए। एंड वी आर वेलकम, यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छा है। एशिया का ये सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सयाहों की यादों में हमेशा हमेशा के लिए बच जाता है। इस बाग में आए सयाह इस बाग की खूबसूरती और इसमें मौजूदगी को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगातार अपलोड करते रहते हैं। हमने जिस किसी भी सयाह से इस बाग की सुंदरता के बारे में पूछा तो हर सयाह ने तारीफों के पुल बांध दिए। Have you come to this place for the first time? Yeah, this is my first trip to Kashmir and I'm really enjoying it, having a lot of fun here. How was your experience to visit this place?
Well, the weather is beautiful. I love tulips and beautiful colors, and they've just begun to bloom. I'm really glad that I came this year around. I heard that this just opened up a few days ago, so it's been beautiful. और आपको पता है कश्मीर ट्यूलिप गार्डन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया. Yeah, I heard, and which is why we had it on our agenda, and we are actually, really enjoying it here, all of us together. What are your impressions about Kashmir? Well, one thing I noticed is it's really clean. That's something that you don't find in the metros and all of that. The people, they are so courteous. The language is so sweet. Like, when people speak, it has a natural rhythm to it. And I enjoy that. And people have been really hospitable. The nature, the beauty. I mean, everywhere you see, you find panoramic views. And it's lovely. It's a great place. Kashmir has a great potential for ecotourism. How do you see the future of ecotourism in Kashmir? Like I said, the cleanliness speaks for itself. I'm sure that the people here are really conscious about the environment, about the ecosystem, and which is why they are doing a lot towards it. And I really appreciate that. In terms of ecotourism, perhaps nature has blessed this place, so I believe that naturally goes on to add. And I think it would emerge, and I want to see it emerge as world's leading destination. Of course, it will help the whole country and tourism overall for us, our economy and everything. So, you're from Delhi, and this is your first visit to Kashmir. Yes, what does tourism mean to you? Well, I'm a traveler. I love traveling, going around places. So this year I took a resolution actually that I'm going to see one place every month. So I'm going to take a break every month and explore one place that I've not seen. And March is Kashmir. I heard that it's a good time to come around here. So yeah, tourism is, literally my life because I love traveling. कश्मीर चुनाच एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए ट्यूलिप गार्डन के खुल जाने से कश्मीर में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत होती है और इसके साथ ही रोज बरोज सयाहों की आमद का सिलसिला बढ़ता ही जाता है. What's your opinion about Kashmir with regard to tourism? I have heard it that Kashmir is a paradise, but really it's really paradise. It's really paradise. The people here, the weather here, extremely superb. No words I have. And secondly, the mountains, the valleys, very, very, very pretty. Very good city and very cool city. Nothing like we don't see anything like terrorism. Nothing like that. It's a very clean, cool, good city. People would love it here if they come here. There is nothing to frighten about anything else. The hotels, the tourism purpose, the cleanliness, it's very nice. Especially the people. People are very cooperative here. They are very kind. And how do you explain the environment of this place? Environment is very clean, without pollution. And seriously, if somebody is ill and comes here, really without any medicine, he will be very much cured. True. How important is tourism for you? Tourism, actually, I have also worked with the tourism industry, and for tourism purpose, our Kashmir is the best place. I can tell you in India. It's a Switzerland. It's a Switzerland of our India. This time tourists seem to be very lucky because they got flowers and snow almost together. So do you find this fascinating? Very fascinating. The city is very fascinating. People, weather, very cool. कश्मीर कब आई है? आज ही सुबह आए हम लोग. How did you plan your visit to Kashmir? It was like we was thinking of going to Switzerland, but then somebody said कि कश्मीर जाओ तो मजा आए, Switzerland जाके क्या फायदा. And how was your experience to visit this garden? Awesome. अभी तो मैं सिर्फ 10 minutes ही हैं, but यहाँ आए हुए, but यहाँ flowers, my God, इतने awesome flowers हैं यहाँ पे, colors, it's like very nice here. Have you ever seen tulips before? No.
Never. This is the first time seeing tulips. And which is your favorite color? Tulips में आपका favorite color कौन सा है? मैजेंटा टाइप है ना, वो पिंकिश रेडिश, वो बहुत awesome है. आपको पता है अभी ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, तो मैं जानना चाहूंगी एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन में आके आप जो फील? I feel like a princess. ऐसा लग रहा है मेरा ही गार्डन है. True. और किस तरह के फ्लावर्स देखना आपको पसंद है? नहीं, मुझे फ्लावर्स आई मीन दिल्ली साइड में तो रोज ही वहाँ पे मिलते हैं अलग अलग कलर्स के, तो वही देखे हैं मैंने आज तक. So tulip is like a new experience for me. Have you ever been to Holland? Because Holland is also famous for tulip cultivation. No, I've never been. I've been to Europe. I've been to Switzerland before also, but Kashmir is much better than that. अच्छा, आप स्विट्जरलैंड गई है. It's being said that Kashmir is very similar to Switzerland. I mean, what kind of similarity do you find in Kashmir? I've been to Dal Lake. So वहाँ से जो आपको माउंटेन पीक्स दिखती हैं with snow covered mountain peaks. I've been to Jungfrau. तो वहाँ जब आप जाते हैं तो रास्ते में ऐसा ही कोई नज़ारा होता है, आपको बहुत एक साफ एक झील दिखती है, दूर वो पहाड़ी दिखती है विद स्नो पीक्ड पहाड़ी, तो उसके ऊपर हम जाते हैं, फिर हम स्नो में पहुँच जाते हैं. तो वी आर गोइंग टू आई मीन हम लोग जा रहे हैं कल स्नो देखने के लिए, तो मुझे वही कुछ याद आ रहा है ऐसे ही. और कौन सी जगह आपने और भी विजिट की है? वेयर एल्स इन द वर्ल्ड यू हैव बीन टू? आई बीन टू नॉर्थ ईस्ट. आई बीन टू दार्जिलिंग, गैंगटॉक, वो भी बहुत अच्छी जगहें हैं. अब मतलब अब मुझे लगता है कि बाहर जाने का कश्मीर कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर बीन. और आपका क्या मैसेज रहेगा आपके दोस्तों के लिए व्हेन यू गो बैक टू योर प्लेस? एक बार तो आना बनता है, मस्ट है आई गेस आना कश्मीर आना. अक्सर आपने फिल्मों में कश्मीर को देखा होगा, यहाँ पर काफी सॉन्ग्स की पिक्चराइजेशन भी हुई. मैं चाहूंगी कुछ आप हमारे लिए गुनगुनाए. क्या गुनगुनाओ? बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो, आई हो किस बगिया से, हो तुम. कश्मीर टूरिज्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यहाँ के नज़ारे, यहाँ का कुजीन, यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के हिल स्टेशंस हैं, और ये सिलसिला साल भर चलता रहता है. ये मेरा दूसरा विजिट है. इससे पहले कब आई है? 2013 में. That's great. What actually motivated you to visit Kashmir again and again? What I feel the best part is this tulip garden, and I think वो जो एक कहावत है कि ये जन्नत है, और मैं बिल्कुल इसमें विश्वास करती हूँ आफ्टर विजिटिंग दिस प्लेस कि कश्मीर, श्रीनगर और स्पेशली ये ट्यूलिप गार्डन जन्नत है. Right. अभी आप ट्यूलिप गार्डन में आई हैं, मैं जानना चाहूंगी what are your feelings on this year tulip garden? Oh, it's amazing, beautiful. What I've seen in 2013, I feel कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है. It is दिन पर दिन निखर रहा है ये ट्यूलिप गार्डन. बहुत खूबसूरत है और बहुत बढ़िया मेंटेन्ड है, और यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, कश्मीरी लोग. आपने इतनी वैरायटी में ट्यूलिप्स पहले कभी देखे थे? नहीं, पहले कभी नहीं देखे, इसलिए हम सेकंड टाइम आए हैं, क्योंकि पहली बार देखा मन नहीं भरा, लगा कि फिर वापस देखें. दैट इज व्हाई वी हैव कम अगेन हियर. हाउ क्लोज आर यू टू नेचर? I'm very close to nature. I'm a nature loving person. I like to visit, like such places. And every year we plan some holiday either to any part of India. Like we have been abroad also, but I think the most beautiful place which I have seen on earth, I can vouch for it, and it is Srinagar, this tulip garden, Kashmir. Right, and Kashmir is considered to be one of the best destination in the world. What do you say? Do you agree with this? I do. I fully agree with this. There's no doubt about it, no second thought. This is the best place. ट्यूलिप गार्डन की मौजूदगी से जहां सयाहों को खूबसूरत लाखों ट्यूलिप्स की कतार देखने को मिलते हैं, वहीं कश्मीर में इन फूलों को कमर्शियल लेवल पर तरक्की देने का सिलसिला भी शुरू हुआ है. हॉलैंड की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह फ्लोरिकल्चर पर ही डिपेंडेंट है. अगर आप भी टूरिस्ट का ट्रेड शुरू करते तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता? यही पेशरफ्त हमारे ट्यूलिप गार्डन की तरफ से हुई है. कट फ्लावर प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसी के तहत ये शो गार्डन हमारा है. इस शो गार्डन के बाद लोगों में डिमांड बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है. ट्यूलिप बल्ब जो है इट कैन बी ए कट फ्लावर बल्ब, और कैश क्रॉप भी आप इसको मान सकते हो. इसके अलावा लिलियम कैन बी ए कैश क्रॉप, क्रोकस का बल्ब होता है, हायासिंथ होते हैं, या अपना क्रिस्टेमम होता है, ढेलिया होता है. ये सारे बल्ब जो है ये हम प्रोपोगेट कर रहे हैं. इसी को कट फ्लावर के प्रोजेक्ट के आगे हम एक्सटेंशन का जो हम बात कर रहे हैं वो हम अप्रूव करवाएंगे अथॉरिटी से, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे. अभी जो 4-5 साल हमें हुए हैं ट्यूलिप गार्डन में, और काफ़ी लोग देखते हैं आप प्राइवेट ग्रोवर्स भी ट्यूलिप की तरफ हो गए हैं. कई प्राइवेट नर्सरीज भी आप ट्यूलिप के बल्ब मार्केट में देना शुरू हो गई हैं. तो यही हाल हुआ था हॉलैंड का. हॉलैंड ओवरनाइट तो
एक फ्लोरिकल्चर इकोनॉमी नहीं बना है, ओवर द डिकेड्स एंड सेंचुरीज में वो काम करता आया है। इवन उनका R&D डिपार्टमेंट उनकी सपोर्ट में खड़ा होता है कि जो नई नई वैरायटीज़ को मार्केट में देता है, सपोर्ट देता है उनको। यही हाल यहाँ पे J&K में, श्रीनगर के गिरदनवा में ज़रूर हो रहा है, और इसमें अपना टाइम ज़रूर लेगा या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में और लोगों की कॉन्फिडेंस आने में और पूरा इसको समझने में। हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसमें एक्सपर्ट हो चुका है। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करने की आप सलाहियत रखते हैं, और जो ग्रोवर्स हैं उनको भी समझ आ गई कि इसको कब ग्रो कराना है, कब कितना डिमांड में है। तो इस तरह से ये एक माहौल बन चुका है कि हम इसको फ्लोरिकल्चर को एक इकोनॉमी की शक्ल में आगे ले चलें। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बट आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। इस प्रोग्राम के लिए कोई भी सजेशन, कोई भी मशवरा देना चाहेंगे तो हमें जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल आईडी है ddksrinagar@gmail.com। नाउ इज द टाइम टू से ऑल ऑफ यू गुड बाय। कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉयिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू DD Kashmir। चलते हैं, अच्छा तो हम